گل پلازا ثانیے میں جہاں باق افراد کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ ثانیے پر تاجر برادری نے تشویش کا اظہار کر دیا، شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ ممتاز شکری سے۔ جی ممتاز، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل دیکھیں، سانحہ گل پلازا کو جو ہے آج 7 روز گزر چکے ہیں۔ اب تک جو ہے 71 جو لاشیں ہیں وہاں سے نکالی جا چکی ہے، جنہیں سول ہاسپٹل میں جو ہے منتقل کیا گیا ہے۔ وہاں سے تقریباً 17 جو ہے لاشیں ان کی شناخت ہو چکی ہے، جو ان کے وارثین ہیں ان کے منتقل کیا جا کے، لیکن اب بھی تقریباً 65 سے زیادہ جو افراد ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے۔ اسی پہ بات کریں گے، میرے ساتھ جو ہے جی عبدالرؤف ابراہیم صاحب موجود ہے۔ دیکھیں، میں تو تاجر برادری تمام ساتھ ہے، چیمبر بھی ساتھ ہے، فیڈریشن بھی ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم جدا جدا ہیں، لیکن ہم تاجر برادری پریشان اس لیے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جس کی کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے آپ اس میں ہڈیاں برآمد ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو کیا کاؤنٹ کریں گے کتنے آدمی تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ 86 باقی ہیں، کوئی کہتا ہے 50۔ مجھے بتائیں، جو ملبہ اٹھ رہا ہے اس پہ انسانی اعضاء کا مشین چیک کر لے گی آنکھوں سے؟ انسانی اعضاء بھی تو جا رہے ہیں نا، تو ڈی این اے ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ کروڑ روپے کیسے ملیں گے اس غریب کو؟ یہ بھی بتا دیں۔ اور دوسرا، اگر میں نے یہ اعلان فرسٹ کیا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بلایا جائے، 1 سال کے لیے کراچی ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں، تاجر اتنا ظلم سہ رہا ہے کہ تمام ٹیکسیز کے باوجود بھی آپ دیکھیں گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کہیں انفراسٹرکچر ہے، کہیں بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، اور کہیں آپ سمجھیں کہ روزگار بھی نہیں ہے۔ اب جو یہ بدحالی ہوگی، اور جو ورثہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، تو کون بتائے گا کہ اس کا بچہ کہاں ہے؟ ساری زندگی بھی روئے گا نا، جب تک قبرستان نہیں پہنچتا نا انسان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، اب وہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ انہوں نے تو ہڈیوں کو ملبے کی نظر کر دیا، اور جو ہڈیاں ہیں وہ بھی صاف ستھری ملی ہیں جس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون تھا پہلا؟ مینجمنٹ چلانے والا؟ کیا فائر فائٹر والے؟ یا کون جواب دار ہیں؟ کیا کے ایم سی، ڈی ایم سی، یا وزیر اعلیٰ، یا میئر صاحب؟ کون جواب دار ہے اس کا؟ کوئی تو جواب داری لے گا۔ تو یہاں اب جواب داری لینے والے کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ سکون، اور ہمیں امن چاہیے۔ یہ تاجر برادری سب کو امن چاہیے، اور اس طرح کے آگ، یہ تو سانحہ بہت بڑا ہے، لیکن لوگوں کا غم یہ بھولا نہیں جائے گا۔ بالکل دیکھیں، جس طرح جو ہے حادثہ وہاں پہ پیش آیا، اس پہ جو ہے تاجر برادری نے تشویش کا جو اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر ان کا مطالبہ ہے کہ کراچی کو 1 سال کے جو ہے فیلڈ مارشل کے جو ہے حوالے کیے جائیں۔ اور جس طرح سانحہ وہاں پہ ہوا 71 افراد جو ہے اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور تقریباً 65 سے زائد جو ہے اب تک لاپتہ ہے، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ شفاف جو ہے تحقیقات کیے جائیں۔ جی ادھر پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی راجہ رزاق بلوچ کا کہنا ہے کہ ثانیہ گل پلازا پر تنقید کے بجائے اصلاح کرنی چاہیے، یہ ہم سب کے لیے دکھ کی گھڑی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا بیان کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پہلے وفاق ہمارے حصے کی گیس تو دے۔ مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ، بتائیے گا۔ جی بالکل، ثانیہ گل پلازا سے سب واقف ہیں۔ ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے ایم کے جو مصطفیٰ کمال ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ راجہ عبدالرزاق موجود ہیں، رکن صوبائی اسمبلی پیپلز پارٹی کے رکن۔ سر بتائیے گا، گورنر صاحب نے رات کو جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ کمال ہیں انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتہائی افسوسناک دلخراش واقعہ ہوا ہے، اس میں کئی انسانی جانیں ضائع ہو گئی۔ وہ ہمارے ہی بھائی تھے، ہمارے شہر کے لوگ تھے۔ مجھے بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ گل پلازا جل رہا تھا، وہاں ابھی تک لاشیں ہم لوگ نہیں نکال پا رہے ہیں، وہاں کے ان کا شناخت نہیں ہو رہا ہے، تو اس پہ آ کے سیاست کی جا رہی ہے۔ اور ایک دیکھیں نا، اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی، میں تو اس انکوائری کی بات کرتا ہوں کہ یہ انکوائری یہاں سے نہیں، نہ جوڈیشل انکوائری ہو، نہ گورنمنٹ پاکستان کرے، انٹرنیشنل آپ انویسٹیگیٹر بلائیں، انٹرنیشنل اداروں کو بلائیں، اس کی انکوائری کریں، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ پاؤں کہاں جا کے پہنچتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ یقیناً ہمیں بھی اس بات پہ شک ہے اور گمان ہے کہ یہ حادثہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ حادثہ وہ بلدیہ ٹاؤن والے فیکٹری سے اس کی کڑیاں جا کے نہ ملیں۔
11 मिनट में एक आग पूरे बिल्डिंग को लपेट लेती है, तो ये क्या है? अब उसी पे रोना, तो वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इसको फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करें, फिर कहते हैं कि भाई अमेरिका सरकार आए कराची को संभाले, फिर कहेंगे इसको इंटरनेशनल। ये क्या बात हुई जनाब? यहाँ गवर्नमेंट मौजूद है, यहाँ सारे हाँ नेगलेंसीज हैं, हमारी भी हैं, सबकी है। मैं कहता हूँ इस शहर की जितने जिम्मेदार हैं उनकी नेगलेंसी है। यहाँ के निज़ाम को हम लोग नहीं संभाल सके, लेकिन उसको ख़राब करने का इन सारी बुराइयों का जड़ कहाँ से शुरू हुआ? आप 80 से लेके देखें ना, आप तारीख दूर नहीं है, आप वहाँ से आके आज तक, अब 3 साल का एक मेयर आ गया कराची में, तो बस तबाही हमने उस मेयर ने की है। अब 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो ये सारी तबाही उसने की है। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले किसने किया था? अगर हम तारीख को देखें, ये एक मेंटेलिटी है, एक मैं कहता हूँ एक बिल्कुल इंतहा पसंद और सिंध दुश्मन ज़हनियत है, जो कि इस तरह की बातें फैलाता है, इस तरह की बातें करता है। मैं कहता हूँ कराची हमारा है, कराची हम सबका है। हम किसी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, लेकिन इस तरह की सोच एक जिम्मेदार लोग, अगर गवर्नर ऑफ सिंध और फेडरल मिनिस्टर अगर इस तरह की सोच रखते हैं, फिर हर कोई खड़ा होकर कहेगा ना कि टुकड़े टुकड़े कर दो, खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान को बांट दो ना। पाकिस्तान कौन सा हम संभाल रहे हैं? पाकिस्तान में कौन सी, तो खुदा न खास्ता ये बात कल ये कहेंगे, ये मसले का हल नहीं है कि इसको वफाक को दे दे। चलो फिर वफाक को देने के बाद अगर कोई बिल्डिंग जलती है, फिर क्या करोगे आप? तो ये एक मेंटेलिटी है, इसको हम कंडेम करते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो फेडरल मिनिस्टर होके जो है वो मुस्तफा कमाल पे ये बात जो है वो सूट नहीं करती। राजा अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि जो है वो ज़रूरी नहीं कि अगर मेयर 3 साल से लगाए तो उसके बाद ही जो है वो ये हादसा जो है वो रोनुमा हो। अगर सुबह को किसी दूसरे हुकूमत के हवाले भी किया जाता है, फिर ये हादसा रोनुमा होंगे, तो फिर क्या जवाब होगा? यहाँ आपको अपडेट करें, स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। मेसर्स गैलेक्सी एक्सचेंज लिमिटेड का लाइसेंस फौरी तौर पर मंसूख कर दिया है। स्टेट बैंक की ज़वाब्ती हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई थी। आपको बताएं, स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। मेसर्स गैलेक्सी एक्सचेंज लिमिटेड का लाइसेंस फौरी तौर पर मंसूख कर दिया गया है। स्टेट बैंक की ज़वाब्ती हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जी की थी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, मरकजी बैंक ने जो है मेसर्स गैलेक्सी एक्सचेंज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस फौरी तौर पर मंसूख कर दिया है। स्टेट बैंक ने नोटिस में कहा है कि कंपनी ने स्टेट बैंक की जो कवायद है उसकी हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जी की थी। स्टेट बैंक के मुताबिक एक्सचेंज कंपनी बशमूल इसका सदर दफ्तर, जो मरकजी दफ्तर है, आउटलेट्स अब करेंसी से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई सरगर्मी नहीं कर सकेंगी। और यहाँ ये जो हिदायत है वो आवाम को भी दी गई है कि अभी गैलेक्सी एक्सचेंज है, इससे कोई भी करेंसी का लेन देन नहीं किया जाए। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएंगी। आपको बताएं, सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट्स 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएगी। सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट्स 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएंगी। अपडेट करें आपको, सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएगी। सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट्स 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएंगी। सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट्स 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात को मार्कशीट्स 15 दिन के अंदर उनके पतों पर भेज दी जाएंगी। अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। सालाना इम्तहानात में 985 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई। उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक 1912 हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सानवी तालीमी बोर्ड ने अलसिना शर्किया के सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राबिल सदीद से। जी राबिल, अपडेट कीजिएगा नताइज के हवाले से।
बिल्कुल देखिए, इस के जो नताइज है वो जारी कर दिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि जितने भी पेपर्स हैं वो बच्चों की जो है उनकी मार्कशीट जो है जल्द दे दी जाएगी। मार्कशीट जो है वो जल्द दे दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों के जो नताइज है वो 985 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिनमें से 912 इम्तिहानात में जो है वो शरीक हुए और 634 उम्मीदवार जो है तमाम पर्चों में कामयाब करार पाए। तलबा तलबा की मार्कशीट जो है 15 दिन के अंदर इनके दिए गए पदों पर जो है भेज दी जाएगी। ठीक है राबिया सदीद, आपका शुक्रिया। उधर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके तहत सूबे भर में 2114 अताइयों के क्लिनिक सील कर दिए गए हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके तहत सूबे भर में 2114 अताइयों के क्लिनिक्स सील कर दिए गए हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने साल 2025 के एदादो शुमार जारी कर दिए हैं। सिंध भर में 2114 अताइयों के क्लिनिक सील किए गए हैं। सूबे भर में 711 तिबी मराकज़ को लाइसेंस जारी किए गए। गुज़श्ता साल के दौरान 283 सेहत के मराकज़ रजिस्ट्रेशन किए गए। आपको बताएं, सरकारी और निजी सतह पर 663 सेहत मराकज़ को अबूरी और 48 को मुस्तकिल लाइसेंस जारी किए गए हैं। सिंध सरकार ने सरकारी जामियात में ज़ेरे तालीम अक़लियती तालिब इल्मों को 5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की मद में अदा करने का फैसला कर लिया है। माह मार्च में फ़ी तालिब इल्म को 50,000 रुपये अदा कर दिए जाएंगे। सिंध सरकार ने सरकारी जामियात में ज़ेरे तालीम अक़लियती तालिब इल्मों को 5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की मद में अदा करने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सरकारी जामियात में ज़ेरे तालीम अक़लियती तालिब इल्मों को माह मार्च में स्कॉलरशिप देने का उसूली फैसला कर लिया है। इस हवाले से सालाना मुख्तस करदा बजट में 5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की मद में तकसीम की जाएंगे। फी तालिब इल्म को 50,000 रुपये स्कॉलरशिप की मद में मिलेंगे। इस हवाले से स्कॉलरशिप की रकम जामियात की मरफत दी जाएगी। तालिब इल्म जामियात की मरफत जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और तालिब इल्मों को जो है स्कॉलरशिप मेरिट की बुनियाद पर दी जाएगी। इस हवाले से महकमा अक़लियती उमूर स्कॉलरशिप की चेक्स जो है वो जामियात को देंगे। जामियात की जानब से स्कॉलरशिप की रकम जो है वो मेरिट की बुनियाद पर जो चेक्स की शक्ल में तालिब इल्म को दी जाएगी। इस हवाले से महकमा अक़लियती उमूर ने तमाम सरकारी जामियात को 27 फरवरी 2026 तक स्कॉलरशिप के फार्म फराहम करने की हिदायत कर दी है और मावन खास है महकमा बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी, उनकी हिदायत पर तमाम जामियात। ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया। इमारतों में फायर सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाने का फैसला। SPCA का मरकजी दफ्तर फायर सेफ्टी निज़ाम से ही महरूम। SPCA 5 मंजिला इमारत में फायर फाइटिंग आलात कारआमद नहीं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल गुल प्लाजा थाने के बाद जो है वो शहर भर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और महकमा फायर ब्रिगेड जो है वो हरकत में नजर आते हैं। नोटिस जारी हो रहे हैं, इमारतों के सर्वे हो रहे हैं, कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, आलात मौजूद हैं नहीं है, और अगर लगे हुए हैं तो क्या वो करामत है या नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो चिराग तले अंधेरा नजर आता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक इमारत के अंदर जो आलात मौजूद हैं वही नाकारा है और जैसे ही तमाम फ्लोर देखा गया तो खस्ता हाली का शिकार है। ऐसा लगता है उनको देखते के बरसों से जो है किसी भी किस्म की कोई इसकी ना ही मुरम्मत हुई है, ना रिफिल हुए हैं फॉर्म उसमें केमिकल, और ना ही जो है उनका कोई इंस्पेक्शन वगैरह हुआ है। तो दूसरी जानिब जो है वो देखा जाता है कि तमाम शहर भर में जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर। ठीक है एहसन अब्बासी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान की अपग्रेडेशन के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी और वफाकी विरसे सकाफत के दरमियान शराकत दारी। आगा खान यूनिवर्सिटी कैंपस में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा व सकाफत औरंगज़ेब खान के अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में और वफाकी वज़ीर सकाफ़त जो है वो शहर कायद के दौरे पे हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी और नेशनल बैंक म्यूज़ियम की तामीर नौ के हवाले से मज़ीद उसके अपग्रेडेशन के हवाले से एक मुफाहमत की याददाश्त पे जो है वो दस्तखत हुए हैं और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और वफाकी वज़ीर जो है आज की मुफाहमती याददाश्त की तकरीब में जो है वो शरीक हुए हैं। फेडरल मिनिस्टर साहब की बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सकाफ़त, सयाहत, पाकिस्तान खूबसूरत हसीन इम्तज़ाज है सर। प्राइवेट
यूनिवर्सिटी के साथ ये कोलैबोरेशन है। आगा खान यूनिवर्सिटी इट इज़ द वन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर द बेटरमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और कल्चर हेरिटेज हमारा असासा है। सर क्या कहेंगे? कि हमारा जो एक कौमी असासा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में, उसको रिवैम्प करने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसको मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ऑपरेशनल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान यूनिवर्सिटी, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की रहनुमाई और सरबराही में हम आगे काम बढ़ाने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में आज का MOU एक बहुत अहम कड़ी थी और जिसके लिए मैं आगा खान यूनिवर्सिटी का, ख़ास तौर पे वाइस चांसलर साहब का, डॉक्टर सलमान सदरुद्दीन साहब का और नेशनल आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पर इस मुफाहमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन है और यकीनन इससे कराची वाले जो हैं इस्तेफादा कर सकेंगे। क्या कहें? ये कोलैबोरेशन एक पाकिस्तान के हेरिटेज, पाकिस्तान के कल्चर को प्रोजेक्ट और प्रमोट करने के लिए नेशनल म्यूज़ियम या म्यूज़ियम्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे बच्चे, हमारे पाकिस्तानी या बाहर के विजिटर्स जो हैं वो सब जाकर समझते हैं कि जी पाकिस्तान की सकाफ़त क्या है, कल्चर क्या है, पाकिस्तान की रिच डाइवर्सिटी, उसको पहचानने की जगह ये। बिल्कुल इस नेशनल म्यूज़ियम को बेहतर से बेहतर करेंगे। वफाकी वज़ीर और प्रेसिडेंट आगा खान यूनिवर्सिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।